Hi students, so I am Atul Rana and I am back for the 12th class video lecture 14. Okay, so this is for the first chapter, that is solutions. Last year solution was the first chapter. This year I am seeing the CBSE syllabus. They have included solid state also, but it is not confirmed until the schools reopen again. So for the time being I am considering solution as the first chapter. Okay, so we have started the solutions first. Okay, chapter solutions. We have started the chapter solutions first. Chapter solutions, class 12th chemistry. Class 12th chemistry, and this is video lecture 13. Sorry, this is video lecture 14. This is video 14. So this is the video 14 on 12th chemistry solutions. Okay. Last time we have studied about the osmotic pressure. Today we will study about Van't Hoff factor. Van't Hoff factor. Okay. Van't Hoff factor. It is very important for solving the numericals coming from this colligative properties. Okay. After I will do this Van't Hoff factor, then we will move to the numerical portion. Okay. So this is Van't Hoff factor. It is represented by small I. Van't Hoff factor is represented by small I. Van't Hoff factor is represented by small I. Okay. So what is this Van't Hoff factor? Okay. So I will explain with a simple example. ओके ठीक है, तुम्हारे पास एक सॉल्वेंट था ए. ओके, तुम्हारे पास सॉल्वेंट था ए. इसका वेपर प्रेशर मान लो था P नॉट ए. इन प्योर स्टेट वेपर प्रेशर वाज P नॉट ए. ठीक है. यू एडेड NaCl. You added NaCl into it. NaCl into it. ठीक है. आपने इसमें NaCl डाल दिया. ओके. Now it is A plus NaCl. NaCl is the solute. Now on the addition of the solute, vapor pressure of the solution will go down. We have studied earlier. So vapor pressure, suppose here PA. Okay, and P naught A is obviously greater than PA. This you all know. Okay. So now we have to calculate that by adding NaCl. Vapor pressure of the solution goes down. But by how much? So we have to calculate. Keeping in notice what is the amount of solute added. Okay. So after adding solute, vapor pressure of the solution will go down. Okay, so what will be the calculations? Calculations will be, you have said P naught minus P divided by P is equal to mole fraction of NaCl. Okay, मैं जनरली स्टडी कर रहा हूं. हमने जिसमें NaCl डाल दिया और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो गया. कितना कम हुआ वो देखो. P नोट, अगर ये सॉल्यूशन वाटर है तो उसका P नोट हम ले सकते हैं कि कितना पार्शियल प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर. अगर ये वाटर है तो इसका हम ले लिए 1. मान लो ए क्या था, वाटर का हमने वेपर प्रेशर ले लिया स्टैंडर्ड स्टेट में 1 एटमॉस्फेयर. 1 आ गया माइनस पी, ये सॉल्यूशन वाले का है. ओके, सॉल्यूशन वाले का डिवाइड बाय ए. ठीक है, यही था. दिस इज द फार्मूला पी नॉट ए माइनस पी अपॉन. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. ओके, मोल्स ऑफ NaCl को निग्लेक्ट करते हैं, यू हैव सीन. ओके, so now number of moles of H2O, suppose this was 1000 gram, so 1 minus Pa divided by 1 is equal to number of moles of NaCl. NaCl के कितने मोल्स है? एक है. NaCl कितना मोल गया? 1 मोल गया. 1 divided by 55.5. ओके, नंबर ऑफ मोल्स of H2O कैसे है? मान लिया हमने 1000 ग्राम था. 1000 divided by 18. गिवन मास, we suppose the water was 1000 gram and वाटर का कितना है? 18 ग्राम है मोलर मास. तो 1000 for water, गिवन मास 1000, molar mass 18, you get 55.5. Okay, now all the terms are known, so you can calculate this partial pressure of A after adding solute. ठीक है, तो आपने भी ऐसे कैलकुलेशन कर ली. दिस इज हाइपोथेटिकल, आई हैव शोन यू. NaCl डाला, NaCl डालने के बाद इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. कितना कम होगा उसके लिए फार्मूला ये है, relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute added. Mole fraction of solute मतलब number of moles of NaCl plus number of moles of H2O plus number of moles of NaCl. Number of moles of NaCl को हमने नीचे निगलेक्ट किया. ओके,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मान लो अगर प्योर वाटर तो उसका पार्शियल प्रेशर सॉरी उसका प्योर का प्रेशर कितना आएगा 1 एटमॉस्फेयर 1, यहां भी 1, सारी कैलकुलेशन करके जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट ये चीज ये है थ्योरेटिकल, हमने थ्योरेटिकल निकाल दिया कि कितनी थ्योरेटिकल निकाल दिया, हमने क्या निकाल दिया थ्योरेटिकल वैल्यूज की निकाल दी। अच्छा जी, 1 मोल डाला था NaCl तो इस हिसाब से ये रिजल्ट आएगा कि हमने 1 मोल NaCl डाला था तो उस हिसाब से ये वाला रिजल्ट आएगा। ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होगी, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होगी किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। बट सपोज करो अगर एक केस तुम्हें बताता हूं, NaCl किस में डिसोसिएट हो सकता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, NaCl कैन डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ओके, हमने मान लो ये वाटर था, सॉल्वेंट A था, सॉल्वेंट A था, हमने क्या किया इसमें NaCl डाल दिया। ठीक है, कितने मोल डाले NaCl के 1 मोल डाला, 1 मोल डाला। बट जैसे ये सॉल्यूशन में पहुंचा, सॉल्यूशन में पहुंचा ये डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट मतलब 2 में टूट गया, Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो यहां पे Na पॉजिटिव आयंस का कितना मोल है 1 मोल, और क्लोराइड आयंस का कितना मोल है 1 मोल। तो हमने डाला NaCl का 1 मोल था, बट सॉल्यूशन में जाने के बाद we received 1 mole of Na positive and 1 mole of Cl negative. So how many total moles? 2 moles. तो हमने we have used only 1 mole of NaCl, but after going in the solution it dissociated to form 1 mole of Na positive ions and 1 mole of Cl negative ions. So total 2 moles were given. Since colligative property depend upon the amount of solute, तो यहाँ पे हम 1 मोल इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे मोल कितना आना था 2 आना था। तो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू जो होगी वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू से क्या होगी अलग होगी। व्हाई? आवर थ्योरेटिकल वैल्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। व्हाई? बिकॉज वहां पे जाके डिसोसिएशन हो गया, हमने सोचा 1 मोल क्या है, एक्चुअली वहां पे सोल्यूट का नंबर 2 मोल था, हमने 1 मोल सोल्यूट डाला था, बट वहां पे 2 मोल सोल्यूट हो गया डिसोसिएट करके। ठीक है, सो इससे क्या होता है डिफरेंस आ गया ना बिटवीन द थ्योरेटिकल वैल्यू, वी वर कंसीडरिंग द थ्योरेटिकल वैल्यू फॉर 1 मोल, बट एक्चुअल वैल्यू जब तुम उसमें बैरोमीटर डाल के देखोगे एक्चुअल वैल्यू जो आएगी वेपर प्रेशर की दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द 2 moles. So there is a difference between the theoretical value for the colligative property and observed value for the colligative property. इन दोनों को बैलेंस करने के लिए we use the term to balance the theoretical and observed value of a colligative property if after adding solute and if that solute dissociates और एसोसिएशन भी होती है वो भी पढ़ेंगे। इस दैट सॉल्यूशन डिसोसिएट और एसोसिएट तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अगर डिसोसिएट करेगा जैसे इसमें डिसोसिएट किया तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए, तो हमने सोचा 1 के हिसाब से आएगा पर आया 2 के हिसाब से। अगर किसी में एसोसिएशन होती है तो हमने सोचा अगर सोल्यूट पार्टिकल इतने हैं पर वो एसोसिएट करके कम हो जाएंगे। सो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफर्स। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए वी यूज द टर्म वेंट होफ फैक्टर। वेंट होफ फैक्टर जिसका फार्मूला है I is equal to observed colligative property, observed value of colligative property divided by theoretical value of colligative property. This is a Van't Hoff factor I. This is a Van't Hoff factor I. Theoretical value of observed value of colligative property. Divided by theoretical value of colligative property. Okay. Now colligative property is directly proportional to n. Colligative property जितने भी हैं they are directly proportional to n. n मतलब given mass upon molar mass. Colligative property is directly proportional to n number of moles. And number of moles का फार्मूला क्या है? Given mass upon molar mass. So colligative properties are inversely proportional to molar mass. Colligative properties are inversely proportional to molar masses. तो यहाँ पे I को अगर molar mass की टर्म में लिखना हो तो observed colligative property कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी. So observed molar mass into theoretical molar mass. Theoretical molar mass. ये कैसे लिखा मैंने? If colligative property की वैल्यू ना दी हो, मोलर मास दिया हो, तो मोलर मास का ही रिलेशन है भाई, because colligative property is inversely proportional to molar mass. Colligative property is directly proportional to number of moles. Number of moles मतलब given mass upon molar mass. So colligative property becomes inversely proportional to molar mass. So if I is equal to observed colligative property, theoretical colligative property, so it will be inverse to molar mass. तो molar mass इसमें ऊपर आ जाएगा, theoretical वाला observed वाला नीचे आ जाएगा. So this is Van't Hoff factor I have started. धीरे धीरे इसका आइडिया दे रहा हूं, अभी आगे चलते हैं. This factor is for 2 cases, association and dissociation. We will see association and dissociation. Okay, with the Van't Hoff factor, Van't
Hoff factor. Okay. Now proceeding with the Van't Hoff factor, it can be different for two cases. There can be two cases. First case, Van't Hoff factor when solute dissociates. When solute dissociates, जैसे NaCl है dissociate करता है. When solute dissociates. Okay. And second case is when solute associates. When solute associates. When solute associates. Okay. Solute या तो dissociate हो जाएगा जैसे NaCl और solute या तो associate हो जाएगा. Okay. So while determining the Van't Hoff factor, we have to see both the cases, dissociation and association. Okay. So I will begin with dissociation first. Dissociation. Okay. Dissociation, and here I will do the association. Dissociation and association means solute या तो टूट जाएगा सॉल्यूशन में जाते ही या बॉन्ड बना देगा. दैट इज एसोसिएशन. केस देखो, एट टाइम दैट इक्वल टू 0, मतलब 0 है. देखो NaCl किस में कन्वर्ट होना है? NaCl will convert into Na positive plus Cl negative. Okay, this is the case of dissociation at time that equal to 0. मतलब अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम 0 है. तो NaCl के पास कितना मोल है? 1 मोल है. और Na और Cl नेगेटिव तो बने नहीं है, ये 0 है और ये 0 है. अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है. ठीक है. NaCl के अपने पास 1 मोल था at time that equal to 0, मतलब रिएक्शन हैज नॉट स्टार्टेड. ओके. नाउ at time that equal to t, at time equal to t मतलब रिएक्शन खत्म होगी. जितना टाइम लेना था उतना ले लिया. ठीक है. तो NaCl सारा खत्म हो गया, 0 बन गया. Na के कितने मोल्स आ गए? 1 आ गए. और Cl के कितने आ गए? 1 आ गए. ठीक है. अब at t is equal to 0, this is the theoretical value. This is the theoretical value कि हमने जी 1 मोल लिया था, बट ऑब्जर्व क्या हुआ? वो 1 मोल किसमें टूट गया? 1 मोल Na पॉजिटिव में और 1 मोल Cl नेगेटिव में. तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आ गई? ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. हमने NaCl का 1 मोल लिया था, बट सॉल्यूशन में जाते ही इसने 2 मोल दे दिए. सो दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दिस इज द theoretical value. We have taken 1 mole, but it has given 2 moles. Okay. So according to theory, our calculations should proceed with the number of moles of NaCl, that is 1. But practically you see that this solute can dissociate. So this, on dissociation of this solute, it has produced 1 ion of Na positive and 1 mole ion of Cl negative. So observed value is 2. So what will be the Van't Hoff factor for this? Van't Hoff factor means this observed colligative property divided by theoretical colligative property. Okay. So I will be observed कितनी है? 2 upon 1, that is 2. So I for this case is equal to 2. इस केस में क्या आ गया? 2 आ गया. Got it? Now एसोसिएशन का केस करेंगे जिसमें हम सोल्यूट डालते हैं, 2 सोल्यूट डालेंगे, 2 मोल डालेंगे, वो मिलकर 1 मोल बना देंगे, या 4 मोल डालेंगे वो 2 मोल बना देंगे. एसोसिएट करेंगे. टूटने से मोल बढ़ेंगे सॉल्यूशन में और जुड़ने से मोल क्योंकि घटेंगे. फॉर एग्जांपल वी टेक एसिटिक एसिड, हमने ले लिए 2CH3COOH, 2 मोल्स ले लिए इसके. ये क्या करता है? इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद इटसेल्फ. आपस में बॉन्ड बना के डिसोशिएट हो जाता है ये. इट फॉर्म्स डाइमर विद इटसेल्फ. डाइमर मतलब अपने साथ ही बॉन्ड बना लेता है. तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं इसके? 2 हैं. 1 मोल यह है, 1 ये है. सॉल्यूशन में डालते हैं, आपस में बॉन्ड बना देंगे. 2CH3COH मींस एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, एक ये है. 2 रिप्रेजेंट्स देयर नंबर ओनली, बट व्हेन दे विल गो इनटू सॉल्यूशन दे विल मेक बॉन्ड विद देमसेल्फ. तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे? ये बना लेगा CH3COOH 2, डाइमर बन गया अभी CH3COH 2. तो यहां पे देखो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी थी? थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है इसकी? 2 है. यहां पर हमने 2 मोल लिए थे, सॉल्यूशन में जाके कितना मोल बनता है? 1 मोल है. नाउ इट इज CH3COH 2. ओके. मोल्स हमेशा कहां से आते हैं? कोएफिशिएंट से आते हैं. इसका कोएफिशिएंट क्या? 2 है. तो इसकी कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं. और इसका कोएफिशिएंट क्या? 1 है. इसका कोएफिशिएंट CH3COH 2 का कोएफिशिएंट क्या? 1 है. यू डोंट नीड टू सी कि फुट में क्या है. फुट में 2 नहीं देखना है, दैट इज बॉन्डिंग. इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. तो इसके मोल्स कितने हैं? 1 है. तो उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई. ठीक है. यहां पे एसोसिएशन होगी. 2 मोल्स अलग अलग पड़े थे, एसोसिएट करके एक सिंगल मोल बना लिया. तो हमने कैलकुलेशन की हमने 2 मोल्स के हिसाब से, पर एक्चुअल में कैलकुलेशन होनी किस हिसाब से चाहिए थी? 1 मोल के हिसाब से. सो हियर Van't Hoff factor विल बी
ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है? 1, थ्योरेटिकल कितनी है? 2, तो क्या आएगा? 0.5। So here I is equal to 0.5। Here I is equal to 0.5। वेंटो फैक्टर की वैल्यू होगी 0.5। ओके, तो हमेशा याद रखना डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से ज्यादा रहती है। डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से ज्यादा रहती है, जैसे हमें 2 आ गई, ठीक है। और एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से कम रहती है, जैसे 0.5 is lesser than 1। So in case of association the value of I will be lesser than the 1 and in case of dissociation the value of I will be greater than 1। ओके, अब इसका इस्तेमाल क्या है? I निकालना तुम सीख गए, एसोसिएशन डिसोसिएशन देख ली, नंबर ऑफ मोल्स थ्योरेटिकल देख ली, ऑब्जर्व देख लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले द मोल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दे आर थ्योरेटिकल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड दे आर ऑब्जर्व। ओके, सो यू हैव कम टू नो थ्योरेटिकल, observed, and by using observed colligative property observed moles or theoretical moles we can calculate the value of I। but इसको लगाएंगे कैसे? How can we use it to balance the colligative property? Okay, colligative property सही लगाने के लिए तो देखो colligative property 4 डिस्कस की थी हमने, ठीक है। फर्स्ट थी relative lowering in vapor pressure, किसके बराबर थी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, सेकंड elevation in boiling point, किसके बराबर थी? ये थी kbm के बराबर मोलैलिटी। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसके बराबर थी? kfm के बराबर थी। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई किसके बराबर था? crt। ओके, सो हियर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है? बिकॉज व्हेन वी एडेड सोल्यूट देयर वैल्यू चेंज्ड, व्हेन वी एडेड सोल्यूट देयर वैल्यू चेंज्ड, बट वी कैलकुलेट इन द कैलकुलेशन फॉर सोल्यूट आफ्टर एडिंग सोल्यूट कैलकुलेशन कैन बी रॉन्ग। हमने सोचा हमने 1 मोल डाला, 2 भी सकता है, हमने सोचा 4 डाले, 4 के एसोसिएट करके 2 बना सकते हैं, 1 मोल डिसोसिएट करके 2 बना सकता है और 2 मोल एसोसिएट करके 1 बना सकते हैं। सो सोल्यूट पे डिपेंड होने से क्या होता है? दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेन फॉर फैक्टर। तो इनको निकालने के लिए I लगा देंगे, I लगा देंगे, I लगा देंगे, I लगा देंगे। जब I पता लग जाएगा फिर जितनी मर्जी वो हो डिसोसिएशन एसोसिएशन आंसर विल बी करेक्ट। सो नाउ I की वैल्यू निकाल के तुम ऐसे इस्तेमाल करोगे। ओके, इन द न्यूमेरिकल्स यू विल कम टू नो इसको कैसे दिस करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल आता है उसमें I की वैल्यू निकाल के सिर्फ रिलेटिव लोडिंग की वैल्यू निकालने से काम नहीं चलेगा, वहां पे देखेंगे डिसोसिएशन हो गया एसोसिएशन, जो कुछ भी हो उसके हिसाब से I की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे यूज करोगे। दिस विल कवर इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन।